Hello, my dear students. Welcome back to my channel, Educational Corner. I hope all of you are doing well. Today, we are going to start with Chapter 4, The World of Metals and Non-Metals, from our Science NCERT book, that is Curiosity of Class 7. So, before starting the lesson, let us understand what is the difference between metals and non-metals. As we are going to read about metals and non-metals and about their properties in this lesson, let us first understand the meaning and the term metals. Metals are generally hard, shiny, and they are good conductor of heat and electricity. Okay, for example, lead, gold, silver, copper. All these metals are hard, shiny, and good conductor of heat and electricity. Whereas when we talk about non-metals on the other hand are dull and they are poor conductor of heat and electricity. For example, diamond, carbon, sulfur, and phosphorus. So let us start reading this chapter, The World of Metals and Non-Metals. The world of metals and non-metals. Yashwant and Anandi live in a village in Rajasthan. Their school has assigned them a project to learn about craftspersons who work with metals. They decide to visit the local ironsmiths who practice this craft. Yashwant and Anandi request their grandfather to accompany them. So Yashwant and Anandi, they were living in a village in Rajasthan and they were given a project, they were assigned a project to learn more about the craft person who work with metals. Okay, so they decided to visit a local ironsmith, a person uh, who is making things with iron. So Yashwant and Anandi, they requested their grandfather to accompany them. They are curious to learn how these ironsmiths make different items of daily use. They interact with an elderly craftsperson, Sudarshan uncle. So they were curious to know that how these ironsmiths were making different items of the daily use with the help of this iron, and they interacted with a craft person whose name was Sudarshan. Yashwant, which items do you generally make? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था यशवंत का कि कौन से आइटम्स आप बनाते हो. सुदर्शन, generally we make items of daily use such as flat pans, tawas, buckets, baltis, tongs, chimtas, and farming tools like spades, favdas, axes, kuladi, trowels, kurpis, and rakes, jillies. तो जनरली उन्होंने बताया कि वो रोज़ क्या क्या बनाते हैं. जो ये तवा हम यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए वो पैन्स बनाते हैं. बकेट जो हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं वो बाल्टी बनाते हैं. टोंग्स, चिमटा जो यूज़ किया जाता है उसको बनाया जाता है. फार्मिंग टूल्स बनाए जाते हैं जैसे स्पेड्स, फावड़ा, एक्सेस, कुल्हाड़ी, ट्रॉवल, खुरपी, एंड रेक्स, जिलर्स. ठीक है. आनंदी, व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ. अब ये सारी चीज़ें किस किस चीज़ों की बनी है, अब ये आनंदी ने पूछा. सुदर्शन, वी यूज iron metal to make these items. We also use wood to prepare handles wherever required. Additionally, we use coal in our furnaces to heat the iron. So सुदर्शन ने क्या बोला कि जनरली तो हम आयरन यूज़ करते हैं. ठीक है, आयरन मेटल यूज़ किया जाता है इन आइटम्स को बनाने के लिए. कई कई जगह पर हम वुड का यूज़ भी करते हैं. जहाँ पर हमें हैंडल्स बनाने होते हैं हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम वहाँ पर वुड का यूज़ करते हैं. एडिशनली वी यूज़ कोल इन आर फर्नेंसेस. फर्नेंस जो है वो क्या होती है, इट इज़ अ वेरी लार्ज इनक्लोज्ड फायर जो एक मेटल को बर्न करने के लिए यूज़ किया जाता है.
ठीक है, एक विशाल, बहुत आप कह सकते हो बहुत बड़ा सा, बहुत विशाल सा, लार्ज सा एक इंक्लोज्ड फायर का गोला होता है जहाँ पर मेटल को बर्न किया जाता है। ठीक है, तो मेटल को बर्न करने के लिए इनके पास जो है फर्नेस भी होते हैं जहाँ पर ये कोल को बर्न करते हैं, और टू हीट आयरन कोल, यहाँ पर ये वी यूज़ कोल इन फर्नेस में कोल यूज़ की जाती है ताकि वो आयरन को जो है वो हीट कर सके, गर्म कर सके, पिघाल सके। सुदर्शन इज हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन फर्नेस, उस फर्नेस में एक आयरन के पीस को जो है वो हीट किया जा रहा था। इट हैज़ बिकम रेड हॉट, ही स्टार्टेड बीटिंग इट हार्ड विद अ हैमर। तो जैसे ही उस फर्नेस में आयरन ब्लॉक को डाला गया वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया और रेड हो गया, और वो फिर एकदम से उसने क्या किया, सुदर्शन ने उसको और ज़ोर ज़ोर की तोड़ना जो है उस पर मारना शुरू कर दिया हैमर से, हथौड़े से और जोर जोर की उसको मारना शुरू कर दिया। आनंदी इज अमेज्ड एंड आस्क्ड व्हाई आर यू बीटिंग इट। आनंदी जो थी वो बहुत क्यूरियस थी, तो उसने एकदम से हैरानी हुई उसको कि ये उसको और क्यों मार रहे हैं, वैसे तो पिघल गया वो, अब उसको और क्यों मारा जा रहा है। सुदर्शन, आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स। तो वो सुदर्शन ने बताया कि मैं इसको इसलिए ही मार रहा हूँ ताकि ये जो है वो इसकी शेप जो है वो एक्स की शेप देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको जो है वो बीट कर रहा हूँ। आनंदी, wow, a piece of iron can be beaten into a flat shape. Can we do this with other metal as well? तो आनंदी ने पूछा, एक आयरन का पीस उसको हम फ्लैट शेप दे सकते हैं, मतलब एक्स बना सकते हैं, क्या हम किसी और मेटल के साथ ये कर सकते हैं? You may also have many such questions. Let us explore what else we can do with metals. Okay, so इसी तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में भी होंगे, तो लेट अस एक्सप्लोर, हम इसे एक्सप्लोर करते हैं कि हम और मेटल्स के साथ क्या कर सकते हैं और मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, basically it is material. Malleability, activity 4.1, let us explore. Caution, conduct this activity under the supervision of your teacher or an adult. तो जो भी एक्टिविटी आपको बुक में दी होती है वो आपने किसी अडल्ट की सुपरविजन में या अपनी टीचर की सुपरविजन में ही करनी है। Collect some waste pieces of copper and iron, an iron nail, a piece of coal, a pea-sized lump of sulfur, गंधक, and a block of wood. आपने क्या करना है, कुछ वेस्ट पीस जो है इन सब चीज़ों के कलेक्ट करने हैं, जैसे कॉपर, आयरन, आयरन नेल, एल्यूमिनियम, पीस ऑफ कोल और थोड़ा सा सल्फर, ठीक है, और एक पीस किसका, वुड का। Recall the chapter material around us in grade 6 science textbook curiosity and observe the appearance of the above item. इनकी आपने अपीयरेंस देखनी है। अपीयरेंस मतलब कि ये देखना है कि क्या ये लस्टरस है, नॉन लस्टरस है। लस्टरस मतलब क्या होता है, शाइनी। नॉन लस्टरस मीन्स डल। ऑल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट, आपको ये भी देखना है कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4. तो आपको एक टेबल दिया, उसमें आपको अपनी इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। क्या क्या चेक करना है हमने उनका अपीयरेंस देखना है कि क्या वो लस्टरस है या नॉन लस्टरस है, मीन्स आइदर दे आर शाइनी और दे आर नॉट शाइनी। एंड सेकेंड थिंग हमने क्या देखनी है कि हार्ड है या सॉफ्ट। नाउ प्लेस ईच ऑफ दीज आइटम्स वन बाय वन ऑन एनी हार्ड सरफेस एंड बीट देम विद अ हैमर। आपने ये जो आइटम्स है ना, आपको जो आपने कलेक्ट करी है, जैसे कि कॉपर के पीस, एल्यूमिनियम, आयरन नेल, piece of coal, then pea-sized sulfur, block of wood, इन सबको आपने एक फ्लैट जगह पर, एक फ्लैट सरफेस पे रखना है, और किसी हार्ड सरफेस और फ्लैट सरफेस पे रखकर आपने इसको हैमर से जो है वो तोड़ने की कोशिश करनी है, बीट करना है। What do you think will happen? Do the objects become slightly flattened or do they break into pieces? क्या कोई ऑब्जेक्ट्स, आपने जो ऑब्जेक्ट्स लिए, क्या वो फ्लैट हो जाएंगे या फिर वो पीसेस में टूट जाएंगे? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.1. सी इन द पिक्चर यू कैन सी बीटिंग एन आयरन नेल विद अ हैमर। एक आयरन नेल को हैमर के साथ जो है वो जो है बीट किया जा रहा है, ठीक है। नाउ अपीयरेंस, हार्डनेस एंड इफेक्ट ऑफ हैमरिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल। ऑब्जेक्ट, अब जो जो हमने ऑब्जेक्ट्स लिए थे उन ऑब्जेक्ट्स का हमने अपीयरेंस देखना है, लस्टरस है, शाइनी, नॉन शाइनी, हार्ड और सॉफ्ट, एंड इफेक्ट ऑफ हैमरिंग, जब आप उस पर हैमर चलाओगे तो क्या वो फ्लैट हो जाएंगे या ब्रेक्स इनटू पीसेस।
फर्स्ट है पीस ऑफ कॉपर। तो कॉपर का पीस जो है वो क्या होता है, वो लस्टरस होता है, मतलब शाइनी होता है। क्या वो हार्ड है या सॉफ्ट है? इट इज़ हार्ड। इफेक्ट क्या होगा जब उस पर हैमर चलेगा? कोई हार्ड चीज़ पे जब आप हैमर चलाते हो तो हमेशा वो फ्लैट हो जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पीस ऑफ एल्यूमिनियम। अपीयरेंस कैसा होगा? लस्टरस। देन इट इज़ हार्ड, अगेन हार्ड होगी तो फ्लैट हो जाएगी। देन आयरन नेल, lustrous, hard, effect of hammering, flattens, flat हो जाएगा। piece of coal, non lustrous, आपने कोल का पीस देखा होगा, वो नॉन lustrous होता है, ठीक है। और हार्ड होता है, बट आप कई बार सॉफ्ट भी कह सकते हो, तो दोनों होते हैं, हार्ड भी और सॉफ्ट भी। इफेक्ट ऑफ हैमरिंग, अब नॉन लस्टरस है, आप जब कोल के ऊपर हैमर चलाओगे तो वो ब्रेक करेगा किसमें? पीसेस में टूट जाएगा, फ्लैटन नहीं होगा, पीसेस में टूट जाएगा। लंप ऑफ सल्फर, पी साइज, छोटा सा आपने लेना है सल्फर। सल्फर भी नॉन लस्टरस है, ठीक है। इट इज़ सॉफ्ट, और सॉफ्ट होने की वजह से वो ब्रेक्स इनटू पीसेस। ब्लॉक ऑफ वुड, नॉन लस्टरस, शाइनी नहीं है। देन इट इज़ हार्ड, बट इट नाइदर फ्लैटन्स नॉर ब्रेक्स इनटू पीसेस। अगर आप एक वुड का पीस लोगे, आप उस पर हैमर चलाओगे, ठीक है, तो ना ही वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा और ना ही वो फ्लैट होगा, ठीक है, ये इफेक्ट आएगा। सो दिस टेबल हैज़ टू बी फिल्ड लाइक दिस। Analyze table 4.1. Identify the objects that are lustrous in appearance and hard. You might have observed that objects made from copper, aluminium and iron are lustrous in appearance and are hard. ये हमने ऑब्जर्व किया ही है पीछे कि जो भी आइटम कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन इनसे बने हैं वो लस्टरस मतलब शाइनी है और हार्ड भी है। लस्टर शोन बाय मेटल इज नोन एज मेटालिक लस्टर। जो भी शाइन, लस्टर मीन्स शाइन, जो शाइन मेटल्स शो करते हैं उसे हम बोलते हैं मेटालिक लस्टर, यानी मेटल्स की शाइन। Material like copper, aluminium and iron are known as metals, whereas coal, sulfur and wood are non-lustrous and not hard as metal. Hard कई कई होते हैं but not as hard as metals, ठीक है। तो they are non-lustrous means they are not shiny. Are all metals hard and solid? Not really. Some metals like sodium and potassium are so soft that they can be uh, cut with a knife, ठीक है। क्या सारे मेटल हार्ड और सॉलिड होते हैं? नहीं, कई मेटल ऐसे भी होते हैं जो सोडियम पोटेशियम के जैसे बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिनको नाइफ से भी कट किया जाता है। देयर इज वन मेटल मर्करी दैट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आपने देखा ही होगा आपके थर्मामीटर में भी मर्करी होता है, मर्करी इज इन लिक्विड स्टेट, तो ये भी एक मेटल है विच यू माइट हैव सीन इन थर्मामीटर, या आपने थर्मामीटर में देखा होगा। Recall the chapter temperature and its measurement from grade 6 science textbook curiosity. Which objects did you find become flat on beating with a hammer? कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे थे जो आपने बीट किए और वो फ्लैट हो गए? You must have observed that objects such as piece of copper, iron nail and a piece of aluminium become flat when beaten, whereas other metals behave differently. ठीक है, तो यही हमारी ऑब्जर्वेशन रही है कि पीस ऑफ कॉपर, आयरन नेल और एल्यूमिनियम जो है वो क्या हुए, वो फ्लैट हो गए, और बाकी ऑब्जेक्ट्स जो थे उनका बिहेवियर डिफरेंट था, ठीक है। सी लस्टरस मटेरियल कौन से हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, and non-lustrous sulfur and phosphorus. Uh, this property by which materials can be beaten into thin sheet is called malleability. So this is important. ये first property है जो हमने पढ़ी है। malleability क्या होती है? malleability होती है जब materials को आप thin sheets में जो है वो बीट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं malleability। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल्स में ही होती है कि उनको हम फ्लैट करके किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, थिन शीट्स में डाल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं malleability।
Most metals possess this property. Can you give some example of metal sheets? You might have seen thin silver foils on some sweets and aluminium foil used for wrapping food items. These are formed due to malleability. Gold and silver are the most malleable metal. सबसे malleable metal कौन से हैं? Gold and silver. तो मेलेबल होता क्या है, जिनको हम ऐसे मटेरियल जिनको हम थिन शीट्स में जो है वो डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर ही जो है वो मेलेबल मेटल्स हैं। और सिल्वर आप जो देखते हो सिल्वर फॉयल और एल्यूमिनियम फॉयल जो आप रैपिंग के लिए यूज़ करते हो, दे आर ऑल्सो बीटन इनटू थिन शीट्स। तो ये भी सिल्वर और एल्यूमिनियम, they are also the materials which are having malleability property. A piece of coal or lump of sulfur does not show this behavior. They break into pieces and are said to be brittle. Okay, so piece of coal जो है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही तो वो शाइनी है, ठीक है, और उनको हम तोड़ के चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बिल्कुल ही टूट जाते हैं पीसेस में। लंप ऑफ सल्फर भी जो है वो ये बिहेवियर नहीं दिखाता, दे आर नॉट मेलेबल, दे ब्रेक इनटू पीसेस एंड आर कॉल्ड ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? जो पीसेस में टूट जाते हैं, आगे छोटी छोटी थिन शीट्स में उनको हम चेंज नहीं कर सकते। वो फ्लैट ऑन द अदर हैंड वुड नाइदर गेट्स फ्लैटन इनटू शीट नॉर ब्रेक इनटू पीसेस। और जो वुड है उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग है कि ना तो वो फ्लैट होती है शीट में, ठीक है, कि उसकी हम शीट बना लें, और ना ही वो पीसेस में ब्रेक होती है। Therefore wood is neither malleable nor brittle. तो वुड जो है वो मेलेबल भी नहीं है जिसको हम थिन शीट्स में हम फ्लैट कर सके, और ब्रिटल भी नहीं है, मतलब वो पीसेस में भी जो है वो नहीं टूटेगी प्रॉपर। होलिस्टिक लेंस, द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो आयरन का क्या इम्पैक्ट है हमारी सिविलाइजेशन में, हमारी प्रोग्रेस, जो इंडिया की प्रोग्रेस हुई है सिविलाइजेशन में, उसमें। इन द ग्रेड 6 social science textbook Exploring Society India and Beyond, you learnt about Harappans. They knew how to use metals like copper and gold. They used these metals to make various objects from utensils to jewelry. However, you would hardly find any evidence of Harappan using a prominent metal iron, which you see a lot around you today. So in your SST book you must have learnt about Harappans, that they were using copper and gold as metal, and they were making various objects from these like utensils, jewelry, but they were not using iron as a metal. Okay, this is because it took a long time before iron was used in day to day daily activities. ये ऐसा क्यों है कि उन्होंने सिर्फ यही मेटल यूज़ करे, कॉपर और गोल्ड, बिकॉज बहुत टाइम बाद आयरन जो है वो इन डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया गया या यूज़ किया गया। However, once the use of iron gained prominence in the times that followed, it contributed significantly to the progress of civilization in India. तो बट एक बारी जब आयरन का यूज़ होना शुरू हुआ तो क्या हुआ कि धीरे 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 उसका यूज़ जो है वो बढ़ता गया और हमारी सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस में हेल्प की। For instance, due to its strength, agriculture tools like plows made from iron were much superior to those used previously. So पहले जो उन्होंने टूल्स बनाए थे वो कॉपर और गोल्ड से और या दूसरे मेटल से बनाए थे, बट जब एक बार उन्होंने आयरन को यूज़ किया तो उनको पता लगा कि एग्रीकल्चर टूल्स और ये जो आयरन से बने हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी टाइम तक वो चलते हैं, ख़राब नहीं होते, टूटते नहीं हैं, और इसलिए उनकी क्वालिटी भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। What could be the potential reason that is generally considered that copper was discovered earlier as compared to iron? तो क्या रीज़न हो सकता है कि कॉपर को पहले यूज़ किया गया आयरन से? मे बी ये रीज़न हो सकता है कि इट्स ओर्स, जो कॉपर की जो ओर जो निकल कर आती हैं वो जो है वो इजीली प्रोसेस हो सकती थी, या लोअर टेम्परेचर पे प्रोसेस हो सकती थी, और उसमें से इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था। तो इसी वजह से कॉपर को जो है पहले यूज़ किया गया, क्योंकि कॉपर जो है वो रेडिली एसेसिबल था और मतलब इजी वर्क था, उसके साथ लोगों को काम करना आता था कॉपर के साथ कि कैसे यूज़ करना है उसको। तो मे बी आयरन को उन्होंने बाद में इसीलिए यूज़ किया, कॉपर को पहले यूज़ किया। डक्टिलिटी, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। मेलेबिलिटी हमने कर लिया कि जब एक मेटल को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं वो मेलेबिलिटी होती है। डक्टिलिटी पढ़ लेते हैं।
Where do you find the use of metal wires? You might have seen wires of metal like copper or aluminium in electrical fittings. Some ornaments like bangles, necklaces, earrings, etc. are also made from metal wires. Metal wires play important function in variety of string musical instrument such as veena, sitar, violin and guitar. सी अब यहाँ पर हमें जो सेकंड प्रॉपर्टी दी है इसमें क्या बताया है कि मेटल वायर्स का क्या यूज़ है या आपको कहाँ देखने को मिलते हैं। देखो मेटल वायर का यूज़ कहाँ है, पहले तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग आपके यहाँ पे जो वायर्स लगी हुई हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम से बने हैं। ऑर्नामेंट्स जो ज्वेलरी है, बैंगल्स हो गई, नेकलेस हो गई, इन इयरिंग्स हो गए, इन सब में भी मेटल वायर जो है वो यूज़ की जाती है। मेटल वायर यानी कि जैसे कि गोल्ड के इयरिंग्स हैं तो गोल्ड की वायर जो है वो बनती है उसमें, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक वीणा, सितार, वायलिन, गिटार, इन सब में भी वायर का यूज़ होता है, मेटल वायर का। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या है, जब हम एक मेटल को या मटेरियल को किस में चेंज करते हैं, थिन वायर्स में चेंज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। मेलेबिलिटी था जब हम थिन शीट्स में उसको चेंज करते थे, यहाँ पर डक्टिलिटी में है थिन वायर्स में जब हम उसको चेंज करते हैं उसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली पोजेस्ड बाय मेटल। ये जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी की, ये मेनली कौन पोजेस करता है, मेटल्स में ही होती है। जैसे कि मेलेबिलिटी भी मेटल्स में ही थी, डक्टिलिटी भी मेटल्स में होती है। गोल्ड इज सो डक्टाइल दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, ठीक है। गोल्ड इतना डक्टाइल है कि उसको अगर हम मेल्ट करें ना तो हम उसको मेल्ट करने के बाद 1 ग्राम को 2 किलोमीटर लंबी वायर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कईयों के पास क्या होता है, गोल्ड का कॉइन होता है या गोल्ड का जैसे जो सिक्का होता है या गोल्ड जो है वो दूसरे रॉ फॉर्म में होता है, तो जब हम उसका नेकलेस बनवाना चाहें बनवा सकते हैं, बैंगल बनवाना चाहें हम उसको चेंज करवा सकते हैं। तो इसलिए गोल्ड इज सो डक्टाइल, इतना ही डक्टाइल है कि जब हम चाहें उसको थिन वायर में, लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल्स इनेबल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस टी स्टेनर विद मेटल वायर, ठीक है। ये जो डक्टाइल नेचर है मेटल का, ये टी स्टेनर है, ये छन्नी है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, मेटल वायर है। क्या है, मेटल वायर। हैव यू एवर सीन वायर्स मेड ऑफ कोल एंड सल्फर? ऑब्वियसली नॉट। कभी आपने देखा है कि कोल या सल्फर की कोई वायर बनी हो? नहीं, कभी भी नहीं बनी होगी। वी कैन से दैट कोल एंड सल्फर आर नॉट डिक्ट। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल्स है। Do you know that ropes made of steel, a mixture of metal, iron and non-metal carbon wires can support heavy loads? Therefore, they are used in suspension bridges and in cranes to lift heavy objects. Okay, तो जो ropes मतलब कि जो बड़ी बड़ी जो रस्सियाँ होती हैं वो जब स्टील से बनती है, किससे, एक आयरन और कार्बन से, दोनों से, तो उनकी जो वायर्स बनती हैं वो हैवी लोड को जो है हेल्प करती हैं सपोर्ट करने में, ठीक है। इससे हम सस्पेंशन ब्रिज मतलब ब्रिज जो है सस्पेंशन ब्रिज बना सकते हैं, वो पिक्चर बनी हुई है। और क्रेन्स जो हैं वो भी हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकती हैं अगर ऐसी वाली रोप्स हो तो, ऐसी वाली वायर्स हो तो। सोनोरिटी, अब दिस इज दी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, सोनोरिटी। सोनोरिटी एक्चुअल में क्या होती है, रेफर्स टू, इट इज रिलेटेड टू साउंड, okay. Have you ever noticed the sound produced when a metal spoon or metal plate or a metal coin is dropped on the floor? कभी आपके हाथ से मेटल स्पून गिर जाए या आपकी प्लेट गिर जाए या कॉइन गिर जाए तो क्या आपको कोई आवाज़ आती है? How is it different from the sound produced when a piece of coal or wood is dropped on the floor? अगर कोई आपके हाथ से कोई कोल का पीस या वुड गिर जाए तो उसकी आवाज़ से ये कैसे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। इसमें आपको पता है काफ़ी डिफरेंस है, ये मेटल की प्लेट गिरेगी या कॉइन गिरेगा तो बहुत तेज़ की आवाज़ आएगी, बट अगर कोल का पीस गिरेगा या वुड गिरेगा फ्लोर पे तो बहुत ही आवाज़ कम आएगी। एक्टिविटी 4.2, लेट अस इन्वेस्टिगेट। Caution, be careful while dropping the objects. Take a few objects such as metal spoon, a coin, a piece of coal and a block of wood. आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। पहले तो आपने एक्टिविटी जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट्स कौन से लेने हैं, मेटल स्पून लेना है, कॉइन लेना है एक मेटल का,
एक पीस ऑफ कोल लेना है और ब्लॉक्स ऑफ वुड लेना है. ड्रॉप देम वन बाय वन फ्रॉम अ सर्टन हाइट. आपने एक 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 करके ना उनको नीचे गिराना है एक हाइट से. डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑब्जेक्ट्स? यस, ऑफ कोर्स नोटिस करोगे आपकी कोई डिफरेंस तो है. आई यूज द डिफरेंस इन साउंड व्हेन माय स्टिक हिट्स वुड और मेटल टू फाइंड माय वे. ठीक है. अब ये जो ब्लाइंड पर्सन है, अब ये स्टिक से चल रहा है. ठीक है. अगर ये किसी वुड पे हिट करेगा तो आवाज़ कम आएगी, मेटल पे हिट करेगा तो क्या होगा, आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी. ठीक है. यू वुड ऑब्जर्व दैट द मेटल स्पून एंड मेटल कॉइन प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड. एक आवाज़ आती है बहुत ज़ोर की, रिंगिंग साउंड. ठीक है. वो लगता है ऐसे कुछ जोर की आवाज़ आई है. कोल एंड वुड ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूस डल साउंड. कोल और वुड जो है वो जब हम गिराएंगे एक हाइट से तो बहुत ही डल साउंड देंगे. This property of metals enable them to produce a ringing sound is called sonority, and metals are said to be sonorous in nature. तो मेटल्स जो है ना उनके पास से एक रिंगिंग साउंड आती है जो बहुत तेज़ होती है, जिसे हम बोलते हैं सोनोरिटी. तो और मेटल्स को ही सोनोरस बोला गया है नेचर. Oh, the ringing sound of my घुंघरूज is also due to sonority of metals. तो जो आपने घुंघरू देखे होंगे, घुंघरू की जब आवाज़ आती है छन 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 ऐसे आवाज़ आती है ना, तो वो जो रिंगिंग साउंड होती है वो भी किस वजह से होती है, मेटल्स की सोनोरिटी की वजह से, उनके रिंगिंग साउंड की वजह से. नाउ आई अंडरस्टैंड द रिंगिंग साउंड ऑफ स्कूल बेल इज ड्यू टू सोनोरिटी ऑफ मेटल. ठीक है. आपके स्कूल में जब बेल बजती है तो उस टाइम पे भी जब बेल बजती है तो वो एक आयरन को हिट करती है. जब आयरन को हिट करती है तो वो मेटल की जब सोनोरिटी मतलब जो साउंड आ रही है, रिंगिंग साउंड आ रही है, वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ सोनोरिटी ऑफ मेटल. सो वी हैव कंप्लीटेड थ्री प्रॉपर्टीज, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड सोनोरिटी. Conduction of heat. Have you ever noticed about? Have you ever observed that the vessels used for cooking in the kitchen? You might have noticed that the vessels used for heating are made of metals. Can you name some metals that are used for making cooking vessels? Do you know why these metals are used for this purpose? So आपको पता है जब आप किचन में जाते हो या आपकी मम्मा किचन में होती है, ठीक है, उस टाइम पर जो वेसल्स यूज़ किए जाते हैं कुकिंग के लिए, ठीक है, जैसे तवा यूज़ किया जाता है. तवा आपको पता है आयरन से बनता है. कढ़ाई यूज़ की जाती है, वो एल्यूमिनियम से बनती है. तो ऐसे ही जो आपको पता है क्या किस मेटल से वो बनते हैं और क्यों बनते हैं ऐसे. Activity 4.3, let us investigate. Caution, this activity must be performed under the supervision of your teacher or an adult. Be careful while handling hot water. अब यहाँ पे हॉट वाटर यूज़ करना है, इसलिए आपको बहुत ही कॉशियस होके किसी अडल्ट की सुपरविजन या टीचर के अंडर आपको इसको जो है वो ऑब्जर्व करना है. प्लेस अ ग्लास टम्बलर ऑन अ टेबल. एक ग्लास टम्बलर आपने टेबल पे रखना है. फिल इट विद हॉट वाटर. इसमें क्या भरना है, हॉट वाटर. Take a metal spoon and a wooden spoon of almost the same size and thickness. एक जगह आपने क्या डालना है, एक मेटल स्पून डालना है और एक वुडन स्पून डालना है. ठीक है. एक तरफ मेटल स्पून डाला हुआ है, एक तरफ वुडन स्पून डाला है. Immerse both the spoons simultaneously into hot water and leave them undisturbed for few minutes. थोड़ी देर तक आपने इनको undisturbed छोड़ना है. Now carefully touch the upper end of each spoon. आप जब दोनों यहाँ पर दोनों को आपने टच करके देखना है कि दोनों ये जो आयरन वाला है स्पून और मेटल स्पून है और जो ये वुडन स्पून है, इन दोनों को आपने टच करके देखना है. Some discussion points. Which of the spoons get hotter? What does this experiment tell us about heat transfer along the two spoons? So first question क्या है कि स्पून कौन सा गर्म हो जाएगा. ठीक है. तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस मेटल स्पून जो है वो ज़्यादा गर्म होगा. ठीक है, क्योंकि वो हीट को इजीली ट्रांसफ़र करता है. कोई भी मेटल हो वो इजीली ट्रांसफ़र करता है, इसी वजह से मेटल स्पून जो है वो ज़्यादा गर्म होगा. एंड व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट टेल्स अस अबाउट हीट ट्रांसफ़र अलोंग टू स्पून्स. तो एक्सपेरिमेंट हमें सिंपली यही बता रहा है कि मेटल स्पून में जो है वो जो मेटल स्पून होगा वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा वुडन स्पून से, क्योंकि मेटल स्पून में हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एंड दे आर मेटल्स आर बेसिकली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए हीट जो है वो इजीली ट्रांसफ़र होती है. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट वुडन स्पून, तो वुड इज़ अ पुअर कंडक्टर, सो हीट इजीली ट्रांसफ़र नहीं होगी. You may have noticed that the metal spoon is hotter to touch than wooden spoon.
तो ये हमने नोटिस किया ही है, जब हम ऊपर से टच करेंगे तो मेटल स्पून जो है वो ज़्यादा गर्म होगा देन दी वुडन स्पून। इवन दो बोथ स्पून्स आर इमर्स्ड इन द वाटर ऑफ सेम टेम्परेचर एंड फॉर द सेम टाइम, दोनों स्पून्स को हमने पानी में डाल के रखा, गर्म पानी में, सेम टेम्परेचर पे और सेम टाइम के लिए। दिस शोज दैट हीट ट्रांसफर थ्रू मेटल स्पून मेकिंग इट हॉटर। इससे क्या पता लगता है कि हीट ट्रांसफर जो है वो मेटल स्पून में ज़्यादा हो रही है, इसलिए वो स्पून को गर्म कर रही है, और वुडन स्पून में बहुत ही कम हो रही है। इन contrast, the wooden spoon transfers heat poorly. In such cases, the transfer of heat from one point to another of a material is called conduction, and materials that transfer heat are called conductors. So, जब हीट ट्रांसफ़र होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, और उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। ऐसे मटेरियल जो इनको ट्रांसफ़र करते हैं हीट को, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। जैसे आपने मेटल का स्पून जो है वो यूज़ करा, स्टील का स्पून यूज़ करा, आप उसे स्टिर करते रहोगे। अगर आपने कोई हॉट वाटर या हॉट टी है, हॉट कॉफ़ी, अगर आप उसे स्टिर करते रहोगे और थोड़ी देर के लिए रख दोगे, तो वो स्टील का जो स्पून होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो इससे क्या पता लगता है कि इजीली ट्रांसफ़र हो रही है हीट एंड दे आर कंडक्टर्स। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन वन कैन से दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल्स जो है ना वो गुड कंडक्टर है, क्यों? क्योंकि वो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वेयर वुड इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वुड जो है वो पुअर कंडक्टर है, क्यों? क्योंकि वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते। Now we can understand why mostly metal vessels are used for cooking. अब हमें पता लगा मेटल वेसल्स कुकिंग के लिए क्यों यूज़ की जाती है। ठीक है, मेटल वेसल्स को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हीट की ट्रांसफ़र हो सके, बट उनके जो हैंडल्स हैं एंड देयर हैंडल्स आर मेड विथ वुड और अदर मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट हीट। हैंडल्स इसलिए वुड से बनाए जाते हैं ताकि हीट जो है वो ट्रांसफ़र ना हो। You will learn more about this in the chapter Heat Transfer in Nature. So, in this part 1, we have learned about the properties of metal. I hope you have understood it. So, I will meet you soon in part 2 of this lesson, the explanation. Hope you enjoyed my video. Please do like my video and subscribe my channel, and please share your valuable comments with me. Thank you. See you soon.